امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کا چھٹا روز، اب تک 5000 ٹن سے زائد بارود برسایا گیا۔ شہداء کی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی۔ قم میں بیلسٹک میزائل لانچر اور اصفہان میں ایئر ڈیفنس سسٹم کو ٹارگٹ بنانے کا دعویٰ۔ تہران اور کرج میں دھماکوں کی آوازیں آتی رہیں۔ تہران کی رہائشی عمارت پر اسرائیلی اور امریکی فوج کے مشترکہ حملے کی ویڈیو جاری۔ ایرانی شہر سنندج میں ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشن کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اسرائیلی طیاروں کی تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ اور آزادی اسکوائر پر بمباری۔ امریکہ اور اسرائیل کا تہران کے قریب مزید 2 اسکولز پر میزائل حملہ، قریبی گھروں کو نقصان۔ ایران کا اسرائیل اور امریکہ پر جوابی وار۔ ہائپرسونک میزائلز نے تل ابیب میں تباہی مچا دی۔ حیفا میں دفاعی نظام ناکام۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر خرم شہر 4 نامی بڑے بیلسٹک میزائل داغنے کا دعویٰ کیا۔ صہیونی ریاست میں خطرے کے سائرنز بج اٹھے۔ ایران کے خلیجی ریاستوں میں امریکی اڈوں پر حملے۔ قطر میں امریکی ٹھکانے دھماکوں سے لرز اٹھے۔ یو اے ای کی فوج نے ابوظہبی میں حملہ آور ڈرون مار گرایا۔ ملبہ گرنے سے متعدد پاکستانیوں سمیت 6 غیر ملکی زخمی ہو گئے۔ مشرق وسطی میں جنگ کا دائرہ پھیلنے کا خدشہ۔ آذربائیجان کے سرحدی شہر نچخان کے ایئرپورٹ پر میزائل اور ڈرون حملے میں 2 افراد زخمی۔ باکو کا ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج۔ ترکی کی حدود میں داغا گیا میزائل نیٹو نے مار گرایا۔ میزائل ایران نے فائر نہیں کیا۔ ترکی کے احتجاج پر تہران کی تردید۔ قبرص میں ایئر بیس پر ڈرون ایران نے نہیں بھیجا۔ برطانوی وزارت دفاع کی کلین چٹ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی جنگی جہاز مار گرانے کا دعویٰ۔ F-15 طیارہ ایران کے جنوب مغربی سرحد کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ ایران پر عراقی کردوں نے زمینی حملہ شروع کر دیا۔ امریکی اہلکار کے مطابق 1000 عراقی کردوں نے ایران کے خلاف زمینی کارروائی شروع کر دی اور ہزاروں کرد سرحد پار کر کے ایرانی علاقوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایرانی خبررساں ایجنسی نے کرد جنگجوؤں کے عراق سے ایران میں داخل ہونے کی خبروں کی تردید کر دی۔ امریکہ نے فی الحال ایران میں زمینی فوج بھیجنے کے کسی بھی منصوبے کی تردید کر دی۔ ایران 47 برس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ امریکی عوام جانتے ہیں یہ ایک باغی اور دہشت گرد ریاست ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوچ کی پریس بریفنگ۔ امریکی سینٹ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر حملے روکنے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ ڈالنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ سینیٹرز کی اکثریت نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت کی۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد 37 کے مقابلے میں 52 ووٹوں سے مسترد کی گئی۔ If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack a number of months ago, they would have a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. So we're in very good shape now. I want to let you know that, and we will continue forward. So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ واشنگٹن میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے خطاب میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کے میزائلز اور لانچرز کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ تہران کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا، مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ اگر حملے نہ کرتے تو ایران کے پاس جلد ایٹم بم ہوتا۔ ایران کے حملوں سے پہلے اس پر حملہ کر دیا گیا۔ ایران نے سری لنکا کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں بحریہ کے جہاز کو غرقاب کرنے کا بدلہ لے لیا۔ خلیج فارس میں جوابی وار امریکی ٹینکر کو تباہ کر دیا گیا۔ بھارت میں مشقوں میں شرکت سے واپس لوٹنے والے غیر مسلح بحری جہاز پر امریکی حملے میں 100 سے زائد افراد ڈوب گئے تھے۔ پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ۔
ईरान का एक और जंगी बहरी जहाज श्रीलंका के करीब पहुंच गया। अमरीकी सबमरीन ने गुज़श्ता उसी मकाम पर भारत से आने वाले एक ईरानी फ्रिगेट को बैनुल-अक़वामी पानियों में तबाह किया था। अमरीका ने ईरान के साहिल से 2000 मील दूर समुंदर में वहशियाना तर्ज अपनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक फ्रिगेट डीना भारत की बहरिया का मेहमान जहाज था, जिस पर तकरीबन 130 बहरिया के एहलकार सवार थे। उन्होंने दावा किया कि जहाज को बैनुल-अक़वामी पानियों में बगैर खबरदार किए निशाना बनाया गया। भारत के साबिक सेक्रेटरी खारजा कंवल सुबल ने ईरानी जहाज पर अमरीकी हमला तयशुदा मंसूबा करार दिया। अमरीका को मालूम था कि ईरानी जहाज मशकों के बाद वापस जा रहा है। बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुताबिक मशकों में शरीक जहाज गैर मुसल्लह होता है। अमरीकी सेनेट में साबिक मैरीन एहलकार का इसराइल की जंग में अमरीका की शमूलियत पर एहतजाज। फौजी एहलकारों की जानिब से जबरदस्ती घसीट कर बाहर निकालने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पेंटागन ने कुवैत हमले में हलाक मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी ने अब तक 500 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा कर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने सिफारतकारी के जरिए जंग से गुरेज की कोशिश की, लेकिन अमरीका और इसराइल ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। चीन का सालिसी के लिए अपना नुमाइंदा खुसूसी मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान। तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की सुर्ख़ लकीर को उबूर नहीं किया जाना चाहिए, ना ही तवानाई और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले करने चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा का बयान। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमायां इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $84 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। माहिरीन को तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज़ करने के खदशात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र कतर का गैस बरामदात मुअत्तल करने का ऐलान। आलमी मंडी में किल्लत का खदशा पैदा हो गया। कतर दुनिया की तकरीबन 20% माया कुदरती गैस बरामद करता है। कतर की गैस ज्यादातर यूरोप और एशिया को फराहम की जाती है। पाकिस्तान, भारत, चीन और जापान बड़े खरीदारों में शामिल। पाकिस्तान में कतर से गैस की मुमकिना बंदिश से पैदा शुदा सूरत हाल से निमटने की तैयारी। गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल तब्दील करने की हिकमत अमली। सुई सदरन के मुताबिक सहरी की तैयारी के लिए गैस सुबह 3 से 9 और दोपहर 3 से रात 9:30 बजे तक फराहम की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रुकने के बाद वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़। वजारत खजाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हफ्तावार ऐलान पर गौर। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। ओगरा का ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। अवाम अफवाहों पर ध्यान ना दें, ओगरा की अपील। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से रवाबत। इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का मलाइशिया के हम मनसब दातो सिरी अनवर इब्राहिम से राबता। मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। अमारात के मारूफ बिजनेसमैन खल्फ अल हबतूर के ईरान पर हमले से मुतालिक सवालात। खलीज को ईरान के साथ फौजी तनाज़े में घसीटने का इख्तियार ट्रंप को किसने दिया? अमाराती बिजनेस ग्रुप के सरबराह का खुला खत। सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह शहजादा तुर्की अल फैसल ने ईरान पर अमरीकी हमले को नेतन्याहू की जंग करार दे दिया। तुर्की अल फैसल के मुताबिक नेतन्याहू ने अमरीका के साथ दौरे करके ट्रंप को जंग के लिए कायल किया। इसराइल के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात की बहाली का इम्कान मुस्तरद। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। ब्रिगेड हेडक्वार्टर 205 कोर कंदहार तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये ये बताते हैं कि पाक फौज ने अफगान तालिबान के एमिनेशन डिपोज को टारगेट किया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और सहूलतकारी के मराकज़ को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि अफगान तालिबान रजीम को पाकिस्तान या दहशतगर्दों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ISPR की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग।
सेनेट के बाद कौमी असेंबली से नैब तरमीमी बिल मंजूर। चेयरमैन नैब की मुद्दत में 3 साल की तौसीह हो सकेगी। नैब अदालत या हाई कोर्ट के पास जमानत देने या मुजरिम को रिहा करने का इख्तियार होगा। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 दिन के अंदर आईनी अदालत में अपील दायर की जा सकेगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अपोजिशन से नैब तरमीमी बिल को सियासी रंग न देने की अपील कर दी। पेशकश की कि अपोजिशन को कोई एतराज है तो वो भी निजी बिल ला सकती है। बावर करवाया कि अदालतें आज़ाद हैं, कोई अदालत किसी के कंट्रोल में नहीं। जज्बात काबू में और आइन को सामने रख कर बात की जानी चाहिए। खित्ता नाजुक दौर से गुजर रहा है। जंग की आग बुझाने के लिए पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिशें कर रहा है। एक कौम बनकर सोचना होगा और खित्ते की सालमियत पर यक जुबान होकर आवाज बुलंद करना होगी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। वजीर आजम की ज़ेर सदारत ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला और खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से इजलास। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम की ज़ेर सदारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के उमूर पर इजलास। शहबाज शरीफ का एग्रीकल्चर रोड मैप के हवाले से मुशावरत का अमल मुअस्सर बनाने की हिदायत। ईरान से ताफ्तान बॉर्डर के जरिए 2000 के लगभग अफराद की पाकिस्तान वापसी। 37 सिफारतकार भी शामिल। महफूज वापसी पर शहरी मुतमईन। ईरान में तबाही पर उदास। वाले थे तो हमें पता चला उधर ईरानी एक दोस्त की कॉल है कि डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है ना पाकिस्तान चले गए और सारे बच्चे खरिया से, लेकिन आपकी ख्वाबगाह पे अटैक हो चुका है। की जो कौम थी वो एक सफ़र थी और वहाँ के जज्बे बिलखसूस रहबर मौज़म सैयद अली खामनेई की शहादत के बाद उस कौम में एक बेदारी तो पहले से थी लेकिन मज़ीद जोश नजर आया। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बाइस फ़ज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 5 रोज़ के दौरान 8 रोज़ के दौरान मनसूख होने वाली परवाज़ों की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान में आज भी 145 परवाज़ें मनसूख की गईं। एहसन इकबाल ने हालिया आलमी सूरत हाल एक साजिश करार दी थी। दुश्मन मुस्लिम बरादर ममालिक में जंग के जरिए साजिश में मसरूफ हैं। मसाइल के हल के लिए उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होना होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब।